We welcome you all in our new lecture on the second part of the balance of payment. In the previous lecture, we had talked about, we have discussed the meaning of balance of payment, its components that includes balance of current account, balance of capital account and balance of trade. So in this lecture, we will talk about the equilibrium, disequilibrium, what are the causes of disequilibrium and how can this disequilibrium can be corrected. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि what is the meaning of equilibrium. In general sense, equilibrium means when two opposite forces come into rest. जब दो opposite forces एक जगह आके रुकते हैं या बैलेंस्ड बनता है उनके बीच में, that means that is the position of equilibrium. हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जान लेते हैं कि what is equilibrium. There are two forces. The first is export, another is import. What is export? If in this example, in this lecture, we are taking the example of India. So if a particular resident or a company or a firm exports something, exports some goods, commodities or technical know-how to any country other than India, that means it is termed as an export, which involves the inflow of the foreign currency. In the same way, if Indian resident or a firm or an Indian company imports certain commodity or a good or a service or a technical know-how or anything, that will involve the outflow of foreign currency. So import and export are two different things, two opposite things. When these opposite forces come into balance, they become equal. That is the position of equilibrium. लेकिन असलियत में इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन बहुत शायद ही कभी एग्जिस्टेंस में आई हो कि जहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बराबर आ जाते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं व्हाट इज डिसइक्विलिब्रियम. डिसइक्विलिब्रियम मींस सिंपल थिंग व्हेन दीज टू फोर्सेस आर नॉट इक्वल, आइदर इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट. सिंपल थिंग. अब इस डिसइक्विलिब्रियम में दो बातें फिर आती हैं, द सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट. सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या निकलता है? Surplus means you are in favorable zone. What is favorable zone? That means your incomes are greater than your expenses. Means you are earning more by exporting the things while you are paying less while importing the things. Means in short you can say when exports are greater than import, you are in the surplus zone. But if the opposite happens, when imports are greater than exports, that means you are paying more what you are receiving in the form of foreign exchange. That means it is a zone of deficit. And this is a case of problem. प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, ना प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम में थी, ना प्रॉब्लम सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम में थी. प्रॉब्लम होती है डेफिसिट में, क्योंकि यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम है. और जैसे कि हम लोग बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि आमदनी अठन्नी और ख़र्चा रुपया. हम कम रहे हैं और ख़र्चे ज़्यादा कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बीमारी की तरह एक प्रॉब्लम है और एक बीमारी को सही करने के लिए सबसे बेटर तरीक़ा ये होता है मेरे हिसाब से, आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उस बीमारी की असली वजह जान ली जाए तो उस बीमारी को ज़्यादा अच्छी तरह सही किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू कि खाली हम दवा देते रहें. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉजेज़ दैट आर लीडिंग टू द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बात को मैं रिपीट कर दूँ अपनी पुरानी बात को कि व्हाट आर दी symptoms that can show the deficit in the balance of payment. In the case of deficit, exports हमारे कम हो जाते हैं, imports हमारे बढ़ जाते हैं. तो अब हम रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है. सबसे पहला रीज़न, शॉर्टेज इन द सप्लाई. एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे देश में सप्लाई की शॉर्टेज अगर हो जाए तो इसकी जो बेस है वहाँ से हम चलते हैं. सबसे बेस बैकबोन जो होती है दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक, क्योंकि हर चीज़ को एक लेक्चर में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको यूँ समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर बेसिकली डिपेंड करता है मॉनसून पे या इरिगेशन पे. अगर किसी देश में मॉनसून प्रॉपर नहीं हो रहा है, रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो रहा है, या अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास अच्छी प्रॉपर नहीं है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा कम होगा. अगर मान लीजिए कम नहीं होता है, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, कम नहीं होता है, तो एक वजह और हो सकती है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इतना प्रॉपर ना हो कि वो मान लीजिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, चीज़ें उग गई, प्रोड्यूस हो गई, लेकिन वो
अगर मार्केटिंग उनकी सही नहीं हो पा रही है या मान लीजिए उनकी ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं हो पा रहा है तो अनाज सड़ जाएगा, तो वो भी सप्लाई की शॉर्टेज ऑब्वियसली क्रिएट करेगा। इसी तरीके से मान ली वेयर हाउस में हमने स्टोर किया, वेयर हाउस हमारे पास प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे रोडेंट्स का प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ पे बारिश होगी तो अनाज सड़ने का प्रॉब्लम आ सकता है और बहुत सारी चोरी का प्रॉब्लम आ सकता है, उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर की सप्लाई कम हो जाएगी। अब ये तो एग्रीकल्चर की बात हो गई। तो एग्रीकल्चर से डिपेंड करती हैं इंडस्ट्रीज़ भी। कुछ इंडस्ट्रीज़ या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के आउटपुट को अपना इनपुट बनाती हैं। तो बट ऑब्वियस अगर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम होगी तो उसका डायरेक्टली कोरिलेटेड उससे क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जब इंडस्ट्रीज के पास एग्रीकल्चर का आउटपुट मतलब इंडस्ट्रीज का इनपुट ही नहीं होगा तो हाउ कैन द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ गुड थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉटन क्लोथ की हम बात करें तो इंडस्ट्रीज अगर कॉटन क्लोथ बना रही हैं तो उसका इंग्रेडिएंट क्या है, कपास, कॉटन है। अगर कॉटन एग्रीकल्चर से आती है और कॉटन ही अच्छी नहीं प्रोड्यूस हुई है या प्रोड्यूस नहीं हुई है, फसल खराब हो गई, तो हाउ कैन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द क्लोथ। It is not possible for the industries to produce cloth or a good quality cloth or a subsidized या कह सकते हैं comparative priced cloth या high quality, नहीं हो पाएगा ऐसा possible। तो इंडस्ट्रीज में भी एग्रीकल्चर की वजह से भी एक हैम्परनेस क्रिएट हो सकती है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में बहुत कभी कभी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक्स, लॉकआउट, तो इसकी वजह से भी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कम होता है जिससे कि एक्सपोर्ट डायरेक्टली अफेक्टेड हो सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि दूसरी वजह क्या होती है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। वो हो सकता है कि हमारे कमोडिटीज़ इतनी अच्छी क्वालिटी की अगर नहीं है, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो फॉरेन मार्केट में उनकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर फॉरेन मार्केट में उनकी डिमांड कम होती है तो इन दैट केस ऑल्सो क्या नतीजा निकलेगा कि हमारे देश के एक्सपोर्ट जो हैं वो कम हो जाएंगे और डेफिसिट की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देन एक नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारे देश में कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ गया है, लोग रेंट ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वेजेस ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, या कोई भी तरह की कॉस्ट अगर प्रोडक्शन की बढ़ गई है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा प्रोडक्शन की कॉस्ट के बढ़ने का, कि हमारा प्रोडक्ट महंगा प्रोड्यूस होगा। व्हेन इट विल बी कॉस्ट मोर देन इट विल बी प्राइस्ड मोर, एंड सिंस rise in the price leads to the fall in the demand, so if in the domestic country the production is expensive, that means the price of the exports will be more, and hence the demand for those exports will fall in the foreign market. फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन से भी रिलेशन बन सकता है। अगर डोमेस्टिक कंट्री में इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, सेक्टोरल इन्फ्लेशन हो चाहे भी जैसा इन्फ्लेशन हो, अगर देश में इन्फ्लेशन है एक्सपोर्टिंग कंट्री में, तो इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स महंगे पड़ेंगे बाहर बेचना, तो एक्सपोर्ट की डिमांड इन द फॉरेन मार्केट विल फॉल, बट इन कंपैरिजन टू दैट हमारे देश में इंपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा, तो इंपोर्ट्स विल राइज इन दैट कंट्री वेयर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट। एक ये पॉइंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग स्क्रीन पे आपके सामने है, ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप करने के लिए दे नीड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, दे नीड हाईली स्पेशलाइज्ड मशीनरीज, दे नीड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट, दे नीड टेक्निकल लोन हाउस, दे नीड स्पेशलाइज्ड थिंग्स, एंड फॉर दैट दे ऑप्ट या दे So the next point is increased cost structure. नहीं. So the next cause can be termed as increased debt burden, or you can say the developmental expenditure. यहाँ पे हम assume कर रहे हैं कि हम उस country की बात कर रहे हैं जो कि एक underdeveloped country है, developing country है. So underdeveloped country, or it can be a developed country, they underdeveloped and developing, sorry. They both need highly specialized machineries, they both need highly specialized equipments, they need a specialized technical loan house, they need patents, और साथ ही साथ उनको पैसे की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल दोनों की ज़रूरत होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री। सो ये कंट्रीज जो डेवलपिंग होंगी या अंडर डेवलप्ड होंगी या डेवलपिंग होंगी, ये कंट्रीज क्या करेंगी, ऑप्ट करेंगी टूवर्ड्स द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल, आइदर फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल। तो जब ये इंपोर्ट करना शुरू करेंगी फाइनेंशियल या फिजिकल कैपिटल को, तो उस केस में भी हमारे देश में क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो दैट कैन लीड टू द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट।
एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम दो पॉइंट्स को एक साथ मिला के बात करेंगे, पॉपुलेशन प्रेशर एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे देश में पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत है, पॉपुलेशन ज्यादा है, एंड टू फीड दोज पीपल, टू फीड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हमारे देश में प्रोडक्शन कम है। तो जाहिरन एक बहुत सिंपल सी बात है, व्हेन द प्रोडक्शन इज लेस एंड द पॉपुलेशन इज मोर, तो गवर्नमेंट विल ऑप्ट टू इंपोर्ट द थिंग्स। गवर्नमेंट इंपोर्ट करना शुरू करेगी अपने सिटीजन्स को उनकी प्रोविजंस, उनकी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, उनकी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो इस केस में भी जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और इसी के साथ साथ कभी कभी कुछ लोग, और बहुत तरीके से लोग अपने आप को कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव सेंस में भी कह सकते हैं, कभी कभी दिखावा करने की सेंस में, या चाहते हैं कि वो अच्छे दिखें या वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप दिखें। तो वो जो डेवलप नेशन में जो थ्योरीज चल रही हैं, जो फैशन चल रहा है, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो उन चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इंपोर्टेड कार्स में घूमें, वो चाहते हैं कि इंपोर्टेड वॉचेस लगाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस केस में भी डायरेक्टली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो डेफिसिट में चला जाता है, बिकॉज इंपोर्ट हमारे देश में बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये बात, हाउ कैन वी करेक्ट दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट कैन बी एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट एंकरेजमेंट। तो एक्सपोर्ट को एंकरेज करने के लिए, क्योंकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर प्रॉपर करना है, डेफिसिट को दूर करना है, तो डेफिसिट की वजह क्या थी, एक्सपोर्ट कम थे और इंपोर्ट ज़्यादा था। तो एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट को हमें कम करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट उसके लिए कि एक्सपोर्ट को एंकरेज करना है। तो एक्सपोर्ट को एंकरेज करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप बहुत कॉमनली यूज कहा जाता है, दैट इज टू रिड्यूस द एक्सपोर्ट ड्यूटीज। या तो पूरी तरीके से कुछ इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट ड्यूटीज को खत्म कर दिया जाए, या उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटीज को इतना कम कर दिया जाए या पहले के मुकाबले कम कर दिया जाए, जिससे कि जब टैक्सेस कम होंगे तो ऑब्वियसली प्राइसेस ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स विल फॉल। भाई जब टैक्सेस कम करेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज पे, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज का कॉस्ट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कम होगा, और उस कॉस्ट स्ट्रक्चर कम होने से प्राइसेस जो है वो भी उन कमोडिटी से कम हो जाएंगे। प्राइसेस कम होने से वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगी और एक्सपोर्ट्स हमारे देश के बढ़ जाएंगे, जो कि हमारे डेफिसिट को दूर करने में बहुत ही सहायक या मददगार साबित होंगे। साथ ही साथ इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को हम सब्सिडीज दे सकती है गवर्नमेंट, इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कंसेशन, इन द फॉर्म ऑफ चीपर रॉ मटेरियल या सब्सिडाइज रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी तरीके से सब्सिडीज भी दे सकती है। तो जब इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज मिलेगी तो इन टर्न वो भी वही काम करेगा जो उससे पहले टैक्सेस ने किया था, कि उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, वो उनकी हमारी कमोडिटीज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव बनेगा, और हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि सस्ते और कॉम्पिटिटिव होंगे और अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो वो एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, या ये एसोसिएशंस ये भी कर सकती हैं कि एक्सपोर्ट के लिए रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। डेवलपमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही अगर एफिशिएंट विंग हमारे सामने बन जाता है, तो हमारे देश की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी मार्केटिंग, मैनेजरियल, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो जाएंगी, वक्त पे टाइम रहते फाइनेंशियल नीड्स पूरी होंगी, टेक्निकल नीड्स पूरी होंगी, तो भी इनकी क्वालिटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ की जो क्वालिटी होगी प्रोडक्ट्स की वो बहुत हद तक इम्प्रूव करेगी, जिससे कि एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। फिर आती है बात कि इम्पोर्ट्स को कम करना है। तो इंपोर्ट्स को कम करने का एक तरीका बहुत सिंपल सा ये है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया जाए। देखिए ये अलग अलग एक एक मेथड नहीं होता है, बल्कि कई मेथड्स के साथ एक ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट को हमें कम करना है। तो उसका एक टूल ये भी हो सकता है कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दें, जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उन पे टैक्सेस बढ़ा दें या मल्टीपल टैक्सेस लगा दें। इससे क्या होगा कि इंपोर्ट होने वाली कमोडिटीज़ अब महंगी हो जाएंगी। जब उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ी है, तो इंपोर्ट हमें रिलेटिवली महंगे लगेंगे, तो हम इंपोर्ट की तरफ थोड़ा कम जाएंगे। साथ ही साथ हम या गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इंपोर्टर्स के लिए लाइसेंस बना दे, या जैसे ही बनता ही है कि विदाउट लाइसेंस कोई आदमी इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट के पास जब क्योंकि अथॉरिटी होगी, गवर्नमेंट चेक करेगी कि हर आदमी इंपोर्ट नहीं कर सकता है, तो इंपोर्ट कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में आएगा। हर आदमी इंपोर्ट क्यों जब नहीं कर पाएगा, तो इंपोर्ट के ऊपर एक कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और इंपोर्ट कम होने की कोशिश में आगे बढ़ेगा।
फिर इंपोर्ट को कम करने के लिए कोटे भी लगाए जा सकते हैं। कोटे कई तरह के होते हैं। पहला तो ये कि डायरेक्टली इंपोर्ट का प्रोहिबिशन हो गया। एक ये भी तरीका होता है कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी कमोडिटी का इंपोर्ट नहीं करेंगे, या इन 5 कमोडिटी, ये मान लीजिए एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, सिर्फ इनका इंपोर्ट होगा, या मान लीजिए ये कहा जा सकता है किसी चीज़ का नहीं होगा एक्सेप्ट इन चीज़ों का। तो इस तरीके से भी इंपोर्ट प्रोहिबिशन लग सकते हैं। साथ ही साथ एक ये कोटा हो सकता है कि एक इंपोर्टर 10 लाख से ज़्यादा का इंपोर्ट नहीं कर सकता, या कोई भी इंपोर्टर कॉटन के अलावा इंपोर्ट नहीं कर सकता। ये भी एक तरीका होता है कि हम एक कोटा लगा दें अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट या अप टू फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ये भी एक तरीका है। एक और तरीका है, इसका नाम होता है बायलेटरल कोटा। इसके अंदर ये हो सकता है कि हम या गवर्नमेंट इंपोर्टर से कह दे कि अप टू दिस लिमिट आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर इसके बाद आप इंपोर्ट करते हैं तो यू हैव टू पे द पेनल रेट ऑफ टैरिफ्स। तो यहाँ पे मतलब 2 पार्ट्स में इस चीज़ को डिवाइड कर दें तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर हमें इंपोर्ट कम करना है पूरी तरीके से, तो अब क्योंकि हमने टैक्सेस बढ़ा दिए, फॉर एग्जांपल लोगों को महंगा पड़ने लगा इंपोर्ट, कोटा लगा दिया, सप्लाई कम कर दी हमने, लाइसेंसिंग लगा दी, हर आदमी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, फिर एक तरह की हमने शॉर्टेज मार्केट में क्रिएट करी। लेकिन हम यूज टू हैं साहब इस पेन को इस्तेमाल करने के, हमको ये पेन चाहिए, मेरी नीड है, आप नहीं दीजिएगा, महंगा खरीदना पड़ेगा हमें, बट आई विल परचेज दैट। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका आता है वो अब है ये कि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन अपने देश में खुद बनाए। मेरी नज़र में दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इससे आपकी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट होगी, आप अपने में सक्षम होना शुरू हो जाएंगे, तब कि जब अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे आप पूरा फोकस करेंगे। आप उनको एक तरफ से उन इंडस्ट्रीज़ को जो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन, ऐसी चीज़ें बना रही जो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं, आप उनको सब्सिडाइज रेट दीजिए, आप उनको सब्सिडीज़ दीजिए, आप उनका प्रमोशन में मदद कीजिए, आप उनको ईजी और कंसेशनल लोन्स दीजिए। बहुत तरीके हो सकते हैं उन ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। लेकिन जब भी हम इंपोर्ट को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो उससे नतीजा ये निकलेगा कि हमारी डोमेस्टिक जो ग्रोथ है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है, वो भी एक तरफ से बढ़ेगी। और अब क्योंकि हमको ये पेन चाहिए था, जो कि हम इंपोर्ट कर रहे थे, महंगा हो गया था, तो हम ये पेन को नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन हमें खरीदना था। तो जैसे ही हमारे देश में यही वाला पेन बन गया जो हम बाहर से मंगा रहे थे, तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा कि हम यह 20 दिन क्यों रास्ता देखें कि हम बाहर से पेन है, हम यहीं से खरीद लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब साथ में चलेंगी तो इंपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे देश के कंट्रोल में आएंगे, और इसके साथ साथ हमारा देश सेल्फ रिलायंट भी बनना शुरू हो जाएगा जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करेंगे। फिर एक मेथड है जिसको बहुत अच्छा माना जाता है, उसका नाम है एक्सचेंज कंट्रोल। इसके अंदर ये होता है कि सेंट्रल बैंक पर जितना भी एक्सपोर्टर फॉरेन करेंसी लेके आता है, दे हैव टू बी डिपॉजिटेड और टू बी सोल्ड आउट टू सेंट्रल बैंक। ये जितना भी एक्सपोर्टर फॉरेन करेंसी अर्न करता है वो सेंट्रल बैंक पास चली जाती है, और जब भी कभी किसी को इंपोर्ट करना होता है तो वो सेंट्रल बैंक से उस करेंसी को मांग लेता है। तो इन दैट केस सेंट्रल बैंक एक ऐसी बॉडी बन जाता है जो कि सब देखता रहता है कि कितने पैसे फॉरेन एक्सचेंज के गए हैं और कितने आए हैं। तो यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर समझ में आती है कि हमारे देश में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे एक पूरी तरीके से इसमें लगाम लगाई जा सकती है। अगर कभी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी इंपोर्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे स्टेप लेने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमें पूरी एक चीज़ एक जगह से पता चलेगी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में कि ऐसा कहाँ पे हो रहा है कि हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वहाँ पे सेक्टोरल रिस्ट्रिक्शंस या जैसे भी आप उस वक्त के हिसाब से बेहतर लगेगा वो गवर्नमेंट इस स्टेप्स को ले सकती है व्हेन द एक्सचेंज कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ वन बॉडी। देन मूविंग फॉरवर्ड द फिस्कल पॉलिसी, टुवर्ड्स द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेस की। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे या पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दे, तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है पब्लिक के पास, जिससे कि वो एक्सेस डिमांड क्रिएट करते हैं, वो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। तो जब खर्चा करने के लिए पैसे भाई साहब कम हो जाएंगे तो वो इंपोर्ट कहाँ से करेंगे? तो इंपोर्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस होना शुरू होंगे। एक चीज़ और हो सकती है कि गवर्नमेंट को टूरिस्ट को प्रमोट करना चाहिए, टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो जब टूरिज्म सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, फोकस किया जाएगा उनकी सेफ्टी पे, उनकी सिक्योरिटी पे, उनकी नीड्स के ऊपर, उनकी मतलब जब वो घूमने आते हैं तो उनकी बहुत और जो नीड्स होती हैं उन पर जब फोकस किया जाएगा, तो टूरिज्म सेक्टर जब इम्प्रूव होगा, और टूरिज्म सेक्टर के इंप्रूव होने से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हमारे सिर्फ एक सेक्टर पे नहीं, बल्कि जब कोई टूरिस्ट घूमने आएगा तो खाएगा भी, घूमेगा भी, होटल में भी रहेगा, जो आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट शुरू होगा, और इसका मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इंपोर्ट कम होने के साथ साथ हमारा देश
डेवलप करेगा, इसकी जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका भी प्रमोशन होना शुरू होगा, क्योंकि जब टूरिस्ट आएगा तो वो लोकल कमोडिटीज़ को लेना बहुत ज़्यादा प्रेफर करेगा, तो हमारी जो लोकल यूनिट्स हैं उनका प्रमोशन शुरू होगा। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स को कंसेशंस दें, उनको हम इस तरह से ल्योर करें, उनको इतने फैसिलिटीज़ दें कि वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स करें। तो जब हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो जब फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो होगा तो हमारा जो डेफिसिट है वो भी दूर होने के कगार पे आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जिस तरीके से हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर सकते थे। इसमें 2 पॉइंट और ऐसे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस डिटेल में बाद में करेंगे, वो उनका नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हाउ डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन कैन हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स और द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट्स। लेकिन अभी इतना समझ लेते हैं कि ये भी 2 मेजर्स ऐसे हैं कि जो आपको आपके इंपोर्ट को कम करने में और आपके एक्सपोर्ट के प्रमोशन में मददगार साबित होंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल है, इसलिए इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर तैयार करेंगे। और लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आप तक पहुंची होगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम तब भी आती है तो हमारी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, आप सिर्फ सिंपली कमेंट कर सकते हैं हमको नीचे, जिससे कि हम आप तक रीच करेंगे जल्द से जल्द और आपकी उस क्वेरी को दूर करेंगे। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको और इसके एडिशनल समझनी हो, जैसे हमारे कुछ व्यूअर्स हमें भेजते रहते हैं हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप नंबर पे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनको कवर करना होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो लीव द थिंग, हम उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे एक लेक्चर तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।